be teaching you the, we will be discussing today the important MCQs, multiple choice questions, which will be helpful to you for preparing the class test, which is scheduled tomorrow. Okay. So without wasting much time, let's discuss. Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I will explain these MCQs with answers. So there are 60 MCQs. So I'll try to cover maximum. Okay. So will it be helpful to you? What do you think? Okay. So answer is beside this question. So this portion is this column is for the answer. Okay. So you are having the answers also. Okay. Now very first question. According to combination rule, if R outcomes are selected out of the total distinct outcomes n, then combination can be calculated using the formula. So simple definition, NCR is equals to n factorial upon R factorial into n minus R factorial. Okay. So what will be the correct option? You can answer. Okay. आप इसमें participate कर सकते हो. And if you know the answer, you can tell me. Okay. So I will not wait for everyone's answer. I will go on, but if you want, you can answer. Okay. So options A, B, C, D among the correct options. What will be the correct option here? So very first answer is the correct one. A is the correct option. Okay. So let's move on to the next question. Simple definition of combination. Now, the method of counting the outcomes in which the number of outcomes are determined while consider the order is called as. So order is important. Now there are two ways of getting the number of. There are two ways, right? Uh, by which you get the number of arrangements, either permutation or combination. Okay, so these are not applicable at all. So first you have to eliminate the which is not important. Okay, just a minute. तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में से ही एक ऑप्शन है. तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है. कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, सो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट. सो विच ऑप्शन इज दैट? नाउ परमुटेशन के लिए ऑर्डर इज अ मस्ट. देर इज अ सीक्वेंस. ओके, देर इज अ अरेंजमेंट and there is a condition. Okay, you can take it as an order or condition. So the correct option will be the permutation, that is B. Next question, considering the combination rule of counting, the value of 5 factorial is. So what is the value of 5 factorial? 20. Yes, 120. How it get? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So among the correct option A, B, C, D, C is the correct option. Okay. So let's discuss the next question. Now the total number of numbers. Now this is a very thoughtful question. The total number of numbers that can be formed using the digits 4, 2, and 6 if no repetitions are allowed. So now there are how many numbers are there? 4, 2, and 6. These are the three numbers, right? Okay. You are given the three numbers, and you are not told that. Now you are told no repetition. Okay, we'll take care of it. Now numbers. Now numbers can be now one digit. Now numbers can be one digit number or two digit number. Please keep your calculators ready, or three digit number. Okay. So total number of numbers means numbers वो one digit होंगे, two digit होंगे, three digit होंगे, ये बताया नहीं है. तो आपको सारे ऑप्शंस एडिशन रूल से ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपको वन डिजिट नंबर बनाना है तो आप कितने वे से बना सकते हो 3P1, यानी कि कितने वेज हो गया. यस, कैलकुलेटेड. और अगर टू डिजिट नंबर बनाया तो आपको 3P2 वेज से बना सकते हो, और थ्री डिजिट नंबर अगर लिया तो 3P3 वेज से आप बना सकते हो. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? यस,
How much 3p1? Keep calculators ready. Okay. Keep your calculators ready. Okay. So what is 3p1? How much 3p1? So it is 3 base or 3p2. कैसे आएगा? How you will get 3 put? Yes. 3p2. So it is 6 and again it is also 6. Okay. सो बाय एडिशन रूल देखो आपको नंबर्स बोला है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट स्पेसिफिक नहीं बोला है तो आपको ऐड करने पड़ेंगे और टोटल वेज कितना आ रहा है ओके 15 सो अमॉन्ग ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस 30 105 12 एंड 15 डी इज द करेक्ट ऑप्शन डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड यस और नो blow your thumbs Yes, okay sir. okay so this is the logic behind it now next question let the sample space contain x1 x2 x3 x4 which of the following is a probability model probability model consider होने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरी होती है सबसे पहले कि probability जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और सम टोटल probability should be 1 ये दो कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होंगी वही प्रोबेबिलिटी मॉडल होगा ठीक है तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे माइनस एक ए में जो ऑप्शन है ओके पी ऑफ x1 ओके ऑप्शन इज इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे माइनस है तो ये फर्स्ट इसमें ही रिजेक्टेड हो गया ठीक है आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम टोटल करके देखेंगे भले ही उसका टोटल 1 आए पर हमको ये कंसिडर नहीं करना है क्योंकि पहली कंडीशन फेल हो चुकी है सेकेंड ऑप्शन में क्या है पाई पाई और 1 माइनस पाई तो 1 माइनस पाई जो है माइनस है आपको पता है सभी को कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है इजंट इट डू यू रिमेंबर पाई की वैल्यू 22/7 होता है तो 1 माइनस 22/7 यानी कि कितना हुआ 7 माइनस 22 सो इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर अगेन इट विल बी नॉट अ करेक्ट ऑप्शन अब हम आखिरी ऑप्शन देखते हैं सी ओके तो यहाँ पे देखो इनका टोटल कितना हो रहा है 0.25 प्लस 0.35 0.60 और यहाँ पे 0.90 और यहाँ पे 1 और इसका टोटल भी है सारे के सारे पॉजिटिव है तो यहाँ पे सारे प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है और टोटल भी इसका जो है ये 1 आ रहा है ना तो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस एवरीवन ओके Yes, sir. Okay, so let's move on to the next question. Okay, thank you. जब भी आपको समझ में आए, just blow the thumbs. Okay. So next question. The set of all possible outcomes is known as so event, sample space, random experiment, Sample nothing. space. Sample space. So the correct option is B. So next question. If two events A and B are mutually exclusive, okay, देन पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो 0 आएगा और पी ऑफ और हमको एडिशन थ्योरम पता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें अगर यस तो इसमें अगर 0 रहा तो ये क्या आ जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ओके तो ये एक्सियोम भी है हमारा इट इज़ आल्सो एन एक्सियोम एक्सियोम नंबर 2 जो भी साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैं देते जाऊंगा मैं आपको तो एक्सियोम 3 की वजह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिजॉइंट है तो वैसे भी वो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी आप ये सॉल्व नहीं करोगे और सीधा आप बोलोगे कि एक्सियोम 3 using axiom 3 that is also fine okay so which is the correct option for this yes which is the correct option first one is the correct option there okay so A is the correct option let's move on to the next one every subset of a sample space is known as event random experiment empty set sample space which is the correct answer event sir. A is the correct option very good okay so now so next question the experiment in which the outcomes are unique and certain outcomes are unique and certain is called as deterministic experiment random experiment complex experiment none of this तो जहाँ पे आउटकम चेंज नहीं होता यानी कि यूनिक होता है और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे कि हीटिंग वाटर हीटिंग अबव 0 डिग्री सेल्सियस
ओके, क्या होता है, वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा, है ना। हम स्टोन को स्काई में फेंकेंगे, थ्रोइंग स्टोन, ओके, इन स्काई, तो क्या करेगा, इट फॉल्स। तो ये चीज़ें जो है आप बार बार रिपीट करोगे तो वही होने वाला है। वैसे ही जैसे राइटिंग अ सी प्रोग्राम, है ना, वही अल्गोरिथम, सेम अल्गोरिथम अगर आप सेम टाइम, नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करोगे तो आउटपुट भी वही आएगा सेम, बराबर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, जिसमें यूनिक होता है, सर्ट पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं अमॉन्ग ऑल दिस डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और प्रोबेबिलिटी के अंदर में हमको डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड दिस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में अनसर्टेनिटी चाहिए होती है, रैंडमनेस चाहिए होता है। इज दैट क्लियर? तो जो क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम्स आर यूनिक एंड सर्टेन इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे ही जुड़ा हुआ है, ये समझ में आया आपको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next question, question number 10. Hope कि all the 60 questions will be completed. So question number 10. Now this is the contrary to the previous question. The experiment in which the outcomes are neither unique nor certain, but the set of possible outcomes are known. जैसे कि throwing a die, है ना, throwing a die, die को कितने फेसेस होते हैं, die को 6 फेसेस होते हैं, बराबर। तो 6. 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, बट एग्जैक्टली विच नंबर विल अपीयर ऑन द डाई, दैट इज नॉट श्योर, बट हमको पता है कि ये 6 में से कोई ना कोई आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। सो अमॉन्ग द पॉसिबल ऑप्शंस, ए डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, बी रैंडम एक्सपेरिमेंट, सी कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की हमको जरूरत है प्रोबेबिलिटी के अंदर में, ओके, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी डील्स विद द अनसर्टेनिटी, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट इन माइंड, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 11. सो टू इवेंट्स एंड वी आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका आंसर हमने जस्ट 2-3 क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तभी हमने देखा था। दो इवेंट को ए एंड बी कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं? यस, हु विल A आंसर? intersection B. यस, A ए, intersection B, sir. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एम्प्टी सेट, 0. Empty, sir. not 0, this is a empty set phi, okay. So B is the correct option among A union B is equals to omega, A intersection B is equals to phi, A union B is equals to phi, none of this, तो इसमें से correct option है B, okay. So you have to think a little bit. Then question number 12, if A is subset of B, then the relation between P of A and P of B, this is the probability theorem, दिस इज द प्रोबेबिलिटी थ्योरम नंबर 4, कि अगर A इज सबसेट ऑफ B है तो क्या होता है, P ऑफ A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लेस और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दिस इज द थ्योरम वी हैव प्रूव्ड, ओके। तो A is subset of B, so which one will hold true among A, B, C, D? A is not C. equals to B, C, sir. C. C1 will hold, okay, C1 will be correct option, okay. अगर B is subset of A होता तो उस केस में क्या होता, so in that case probability of B is less equals to probability of A. Is my voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, in this question the question number option number C is the correct one. Then next question, the probability of an impossible event is, impossible event means empty set, okay, throwing a die and getting 7, okay, कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, throwing tossing a coin and getting 2 hits, कुछ नहीं मिलेगा। तो एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो थी, दिस इज द एग्जाम नंबर 2, सॉरी थ्योरम नंबर 2, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज जीरो, ओके। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा अमॉन्ग ए बी सी डी, 1 पी ऑफ फाइव, 1 माइनस पी ऑफ फाइव और 0, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी विल बी द correct option. Next question, question number 14. Using all the letters of the word paper, how many different arrangements can be made? पेपर के सारे वर्ड यूज करके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं? तो आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के अंदर में, सॉरी परमुटेशन के अंदर में 3 केसेस बताए थे, 1 2 3। परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल।
और दूसरा है परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट, तो उसके अंदर में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड डैश डैश nk फैक्टोरियल, इसमें हम ऑल ऑब्जेक्ट्स साथ में लेते हैं। और दूसरा परमुटेशन विथ रिपीटेशन, ओके, इसमें भी डिस्टिंक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ओके, बट यहाँ पे नो रिपीटेशन होता है, इट इज नॉट रिपीटेशन नॉट अलाउड, बट हियर रिपीटेशन इज अलाउड, ओके। तो कौन से केस में आएगा ये क्वेश्चन, विच केस इट विल बिलोंग टू, यस, पेपर में अल्फाबेट देखो, इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या है, अल्फाबेट्स, ओके, तो इसमें p अपेयरिंग ट्वाइस, तो n1 इज इक्वल्स टू 2 आ गए, है ना, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर अपेयरिंग ओनली वंस, सो a e and r are appearing only once, okay, तो n2 is equals to n3 is equals to n4, all are 1, ठीक है। तो अभी देखो और टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं इसमें, काउंट करो, 2 4 और 1 5, ओके। तो इसमें देखो एक अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, तो ये सेकेंड केस को बिलोंग करेगा, ओके। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका सिंपल सा आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन, कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी नाउ, 2 फैक्टोरियल इनटू, अब देखो 1 फैक्टोरियल लिखते नहीं है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सो 5 फैक्टोरियल divided by 2 factorial, what is the answer, yes, 60. 60, very good, so it is the answer is the 61, okay, so B is the correct option. All of you got this answer, Yes, sir. okay. Yes, sir. Now just a minute, there is a student. Let's move on to the next question. So there are 12 points in a plane, out of which 5 are collinear and number of triangles formed by the points are vertices, okay. The number of triangles formed by the points are as vertices. So there are, so what do you mean by collinear point, okay, so collinear points are those points, मान लेते 5 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में है, 3 और 2 5, और बाकी के जो 12 पॉइंट में से जो 7 पॉइंट है वो इधर उधर है, बराबर। तो आप ट्रायंगल तभी फॉर्म कर सकते हो अगर वो नॉन कोलिनियर हो, अलग अलग जगह पे, एक लाइन में हो तो आप ट्रायंगल कैसे फॉर्म करोगे, तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के चांसेस जो है ये 5 जो पॉइंट एक ही लाइन में उससे कम हो जाती है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी हमके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल्स, क्वेश्चन को समझ लेना है आपको, क्वेश्चन को एक दो बार रीड करेंगे। देर आर 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है जिनमें से 5 क्या है, कोलिनियर है, 5 आर कोलिनियर, यानी एक ही लाइन में है, तो रिमेनिंग जो है वो अलग अलग है, ओके, अलग अलग पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स इस पे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाउंड बाय द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस, तो अगर आप ये पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तो कितने डिफरेंट ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टेरियस क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा सा हिंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो एक बात आपको समझ में आया होगा कि ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, बराबर है कि नहीं, है ना। तो अभी किन पॉइंट्स के वजह से ट्रायंगल नहीं बन सकता, ये 5 पॉइंट की वजह से, तो 5C3 वेज माइनस करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। अब कहाँ से, टोटल वेज कितने हैं, अब 12 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट में से अपने को कितने चाहिए, 3 चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट, यस एवरीवन प्लीज थम, ब्लो योर थम्स, यहाँ तक समझ में आ गया कि 12 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स अगर हम चुनते हैं, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये वेज है, टोटल वेज, दिस इज व्हाट, टोटल वेज,
मोटा मोटी ध्यान में रखो कि 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में से 3 पॉइंट की जरूरत है आपको ट्रायंगल बनाने के लिए, 1 2 3 कोई भी 3, तो उससे इतने वेज से ट्रायंगल बनेंगे। अब उनमें से माइनस करने पड़ेंगे कितने, जो एक ही लाइन में है उनको नहीं ले निकाल सकते। अभी इसका और इसका ट्रायंगल बनेगा क्या, 1 2 और 3, इसका ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका और इसका बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका इसका बनेगा क्या, नहीं। आप ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट करोगे तो वो कितने आएंगे, 5C3 आएंगे, 5C3 ट्रायंगल्स आएंगे कि जो बन ही नहीं सकते पॉइंट्स, है ना। तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो कौन बताएगा मुझे कि फाइनल आंसर कितना हो रहा है। यस, 12C3 माइनस 5C3, तो कितने वेज आएंगे, एनीबॉडी कैलकुलेटेड। तो ये आता है 210। ठीक है, तो ऑप्शन है 185, 210, 220 एंड 175। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, यस 210। तो अगर 5 पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर टोटल ट्रायंगल्स कितने आएंगे हमको, 210। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो कितने अरेंजमेंट्स मिलते, फिर 12C3, है ना, 12C3। ओके, तो ये भी साइमल्टेनियसली आपको समझना है। तो 1 और 2 स्टूडेंट प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Sir. ठीक Yes, है, sir. so let's move on to the next question. The number of ways in which 8 distinct toys can be distributed among the 5 children is given by. ओके, तो इसमें जो आंसर आएगा वो ऑप्शंस है 5⁸8, 8⁵5, 8P5 और 5P5। तो आपके पास टॉयज कितने हैं, 8 टॉयज है। ओके, हाउ मेनी टॉयज आर देयर, 8 टॉयज आर देयर। और कितने बॉयज है, 5 चिल्ड्रन आर देयर। ओके, तो 5 चिल्ड्रन में 8 टॉयज हम कितने वैसे कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5, यानी कि हर एक बॉय के लिए B1, B2, B3, B4 और बॉय। अब मैं चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है, ये चिल्ड्रन है। ओके, ठीक है, तो हर एक को जो है 8 ऑप्शंस है, 8 ओके। जस्ट अ मिनट, अगर हम टॉयज को नंबर देते हैं, टॉय T1, T2, T3, T8, तो हर हर कोई टॉय किसी भी चिल्ड्रन को मिल सकता है ना, बराबर है। ओके, हर कोई टॉय जो है किसी भी चिल्ड्रन को मिल सकता है। सो 5 एंड 5 8 टाइम्स होगा, तो ये 5⁸8 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 5⁸8, यानी कि कोई भी टॉय किसी भी चिल्ड्रन को मिल सकता है, बराबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अमॉन्ग दिस ए, 5⁸8। तो आपको समझ में, आप विदाउट आई इंसिस्ट आप थम्स ब्लो करते जाइए कि आपको समझ में आ गया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग कितने हैं, 2 है। एक है मल्टीप्लिकेशन और एक है एडिशन, इसके अलावा कोई और प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, डिवीजन प्रिंसिपल और बोथ ए एंड बी। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, यस both A and B. So D is the correct option. Got it? Yes, sir. Next, question number 18. The classical definition of probability can be applied if. कब अप्लाई कर सकते हैं classical definition, क्या conditions है, all outcomes are unique. Yes, it is one of the condition. सारे outcome कैसे unique होंगे। Okay, all outcomes are equally likely. ये भी सही है कि सबको equal chance रहेगा। और exhaustive cases n are known and finite. इनफाइनाइट होगा तो काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, उनमें से 10 बार हमने ब्लिंक करते हुए, तो ब्लिंक कितने करे उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमको स्टार्स कितने पता ही नहीं ना। ओके, तो कहने का मतलब एन शुड बी नोन एंड फाइनाइट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे यानी कि सही होने चाहिए, तभी आपको क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आउटकम्स यूनिक का मतलब क्या है, आउटकम यूनिक यानी कि थ्रोइंग अ डाई और गेटिंग 1 to 6, तो ये सारे के सारे यूनिक है ना, बराबर है।
1 कहीं रिपीट नहीं हो रहा है या फिर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि सबको 1/6 1/6 1/6 प्रोबेबिलिटी है, तो ये इक्वली लाइकली होगा। और n इज इक्वल्स टू 6, इट इज़ अ फाइनाइट, ये फाइनाइट नंबर है और हमको पता है डाई को 6 फेसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर सेटिस्फाई होती है तो ये आप क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो। सो डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज ब्लो योर थम्स। उसके बाद जो है 2-3 लोगों के ही समझ में आए शायद, है ना? ओके, ठीक है, ठीक। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। Then 19th, question number 19, an unbiased coin is tossed 3 times. What is the probability of getting exactly 2 hits? ठीक है, बहुत ही सिंपल 3 क्वेश्चन by है। 8. Yes, so answer is 3/8, 4/8, 2/8 and 1/8. तो एग्जैक्टली बोला है इसलिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2 हिट्स, बराबर। तो ऑप्शन इज करेक्ट। ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? अभी अनबाइस्ड कॉइन्स कितने 3 कॉइन्स टॉस किए ना, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2⁻3। ओके, यानी कि 8 आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 कॉइन्स है तो हम कॉलम बनाते हैं 1 2 3। किसी को अगर याद रखना नहीं है और सिंपल वर्ड्स में लर्न करना है आउटकम्स, है ना, स्पेस नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं 8 के जो आधे हैं हम यहाँ पे एच 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 और एच यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट्स हम टेल्स लिखते हैं। उसके बाद एच एच टेल टेल, एच एच टेल टेल। किसी को अगर याद करने का अगर बहुत ही यानी कि याद नहीं करना है, ट्रिक चाहिए, तो ये ट्रिक है। ओके, एच टी एच टी एच टी एच टी। सेम आप कंटिन्यू कर सकते हो 3 कॉइन्स 4 कॉइन्स 10 कॉइन्स एन नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए आप ये कर सकते हो। तो अभी ये जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो रहेंगे आपके ऑप्शन। तो मैं इसको ही ले लेता हूँ आपका सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस के 8 आपके आउटकम्स है। तो मुझे बताइए एग्जैक्टली 2 हेड्स कौन से इसमें हैं? तो एग्जैक्टली 2 हेड्स यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसके अलावा बाकी की जगह पे लेस और मोर हेड्स है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम है 8 और फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 3/8। सो 3/8 इज द करेक्ट ऑप्शन एज वन ऑफ द स्टूडेंट हैज आंसर्ड इट। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द 20th क्वेश्चन। An unbiased coin is tossed 3 times. Now what is the probability of getting at least 2 hits? अब सेम क्वेश्चन है और अभी क्या पूछा? एटलीस्ट, कम से कम। तो कम से कम अगर है तो इसका मतलब 2 और 3 ये भी चलेंगे, है ना? कम से कम 2 हिट चाहिए, इसका मतलब जी 2 सर. और 3। तो इसमें फिर 3 हिट्स वाला भी ऑप्शन इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला भी। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 4/8 या फिर 1/2 भी आ सकता है। स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसी का तो नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An unbiased coin is tossed 3 times. What is the product of getting no head? The same question. क्या मुझे विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हो? नो हेड्स का मतलब क्या हुआ? हेड है ही नहीं, ऐसे कितने ऑप्शंस है? ओनली वन, by नो हेड, है ना? So All are the same. 1/8 is the correct. Yes. Okay. If you understand all these 3 questions, please blow your thumbs. So no heads, यानी कि 1/8. So option D is the correct option. Let's move on to the question number 21. In the theory of probability, the total number of axioms is, कितने axioms है theory of probability में? Axiom number 1 2 and 3. तो axiom number 1 क्या कहता है? So probability of any event is positive. ठीक है, दूसरा axiom क्या कहता है? Probability of sample space is 1. और तीसरा axiom क्या कहता है? P of A union B is equals to P of A plus P of B. कैसे? अगर if A and B are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर में 3 ही एक्सियोम्स है, ये आपको याद में रखना है, 1 2 एंड 3, और इसका सीक्वेंस भी वैसे ही रखना है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग A1 B2 C3 एंड D4। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टू कंडीशंस फॉर एनी मॉडल टू बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मॉडल। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल हम कब कहते हैं? व्हेन वी कॉल अ प्रोबेबिलिटी मॉडल। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी हमें पहले 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा भी था प्रोबेबिलिटी मॉडल का, ठीक है? सो कौन बताएगा मुझे? None of this. विच वन? विच Option इज C. ऑप्शन सी इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सारे के सारे प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। पी ऑफ एक्स आई शुड बी पॉजिटिव। और दूसरी चीज जो है, इनका टोटल जो है वो करेक्ट 1 आना चाहिए एग्जैक्टली। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो ये है 1 अमॉन्ग ए बी सी डी ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो ये लेस और इक्वल टू 0 यानी कि ये माइनस हो गया ना, प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। ओके, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट कर लीजिए आप लोग। और आखिरी में मैं ये सेशन कैसा रहा मैं सबसे पूछने वाला हूँ। 1 और 2 स्टूडेंट विल आंसर में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टूडेंट। तो 1 और 2 स्टूडेंट्स आप मुझे अनम्यूट होकर बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 24, A and B are disjoint events defined on a sample space omega such that P of A is equals to 3 by 8, P of B is 1 by 2, then P of A union B। अब यहाँ पे डिसजॉइंट इवेंट्स बोला है, इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एक्सियोम 3 जस्ट अभी अभी हमने देखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? P of A union B is equals to what? P of A प्लस P of B। ओके, रीजन अगर लिखना है तो कई तरह के रीजन दे सकते हो आप। एक्सियोम 3 का रीजन भी दे सकते हो। और अगर आप डिसजॉइंट इवेंट है तो आप लॉजिकली आप बोल सकते हो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0, ये भी रख सकते हो और एडिशन थ्योरम में आप रख सकते हो। ओके, तो अभी इसमें कैलकुलेट करो। P ऑफ A यानी कि कितना है? 3/8, ठीक है? और P ऑफ B कितना है? 1/2। तो हम इनके न्यूमरेटर सही कर लेते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 4/8, सो इट इज 7/8। So the options are 5/8, 8/5, 7/8, and 11/16. So what is the correct option then? So Option C. C is the correct option. Option C, 7/8. So let's move on to the next question. Question number 25. If event A denotes the getting a multiple of 5 or 4 on a die, then A is a, अगर die है, what is the event? Throwing a die कितने बार? एक ही बार। तो यहाँ पे नंबर्स क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे, ठीक है? अब a मीन्स व्हाट? मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल यानी कि यहाँ पे क्या है? 1 to 6 में एक ही है, यानी कि वो नंबर इटसेल्फ 4 ही है। तो ये जो नंबर है वो क्या आएगा? इसे क्या कहेंगे? श्योर इवेंट कहेंगे, या सिंपल इवेंट कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे? यस। तो श्योर इवेंट में क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि थ्रोइंग अ डाई इवन और ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा अंदर। सिंपल इवेंट में क्या होता है? ओनली वन। ओके, ओनली वन आउटकम इज देयर। इम्पॉसिबल इवेंट में कुछ होता ही नहीं, तो इट्स एम्प्टी। ओके, एग्जॉस्टिव की तो कोई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे एक ही इवेंट डिफाइन किया गया है। ओके, तो इसका मतलब विच इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ? विच वन इज द? B. Simple Simple event. event. Yes, C. Yes, B is the simple event is the correct option. Okay. So now next question. Probability of a sure event is, कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल है, 0 1 0.5 बिटवीन 0 एंड 1। सो श्योर इवेंट क्या होता है 1. इसमें? यस, एग्जैक्टली, इट इज 1। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो श्योर इवेंट जो है वो क्या होता है? उसमें ऑल एलिमेंट्स होता है। तो ऑल एलिमेंट्स होता है तो हमने एक्सियोम 2 देखा है, बाय एक्सियोम 2। ओके, तो एक्सियोम 2 के हिसाब से ये 1 होता है। श्योर इवेंट यानी कि क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट यानी कि सैंपल स्पेस क्यों नहीं कहेंगे हम इसे सैंपल स्पेस ही कहेंगे, ठीक है? तो सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी 1 होती है, 1। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 27। आपको समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन? सो प्लीज ब्लो योर थम्स। ओके, ओके। Next, among the following probabilities which is not possible?
नीचे दिए गए प्रोबेबिलिटी में से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक लॉ क्या है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ये देखना है, वो निगेटिव तो नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको देखना है ये 3/8 यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी, हमको क्या है नॉट पॉसिबल ये आइडेंटिफाई करना है। 3/8 ये भी पॉसिबल है, 5/8 ये भी पॉसिबल है, बट क्या पॉसिबल नहीं है 8/5, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीड्स 1, दिस प्रोबेबिलिटी वाज एक्सीडिंग 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी की प्रोबेबिलिटी, बराबर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन देन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Correct option. ओके, नेक्स्ट, an event which contains no element of a sample space is known as, इसका आंसर आप दीजिए। ऑप्शन है सिंपल इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, नो एलिमेंट, ये दो तीन D. बार रिपीट हो चुका है। Impossible event. यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इम्पॉसिबल इवेंट, जिसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी है, तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। सिंपल इवेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट अभी हमने देखा एक ही एलिमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़ के सारे, है ना, जैसे इवन नंबर डिफाइन किया तो इवन नंबर छोड़ के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। श्योर इवेंट यानी कि ऑल, तो इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि एम्प्टी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 29, the classical approach to probability assumes that all possible outcomes of an experiment are, क्या आने चाहिए सारे, all possible outcomes of the Independent. experiment equally likely होने चाहिए, ओके। उसके बाद इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, डिजॉइंट क्या होने चाहिए, इसमें से कौन सा रहेगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आएगा, Equally likely. इक्वली लाइकली आएगा, क्योंकि हम क्लासिकल डेफिनेशन में क्या एज्यूम करते हैं, सबके इक्वल चांस है ना। तो ये तीन जो हमने कंडीशंस बताए उनमें से एक कंडीशन क्या है, इक्वली लाइकली। इंडिपेंडेंट का हमने कभी देखा नहीं, डिसजॉइंट का भी नहीं देखा हमने, पर इक्वली लाइकली का सुना है कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। जैसे कि सैंपल स्पेस कंटेन थ्रोइंग अ डाई, तो सैंपल स्पेस 1 to 6 रहेगा, तो सबको हमने बोला था कि 1/6 इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है, इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं होती इक्वल प्रोबेबिलिटी तो हम उसमें प्रोबेबिलिटी मॉडल का यूज करते हैं। अभी हमने एक दो क्वेश्चन देखे हैं प्रोबेबिलिटी मॉडल के ऊपर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 30, impossible events has only one element 0, करेक्ट, राइट और रॉन्ग? इम्पॉसिबल इवेंट True में है, एक ही एलिमेंट होता है, यस, ट्रू और true है फॉल्स? सर। True. True है. It is false, okay, it is false, why? Zero is Because also it is number, empty. yes it is empty, इसमें कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, जीरो होता है मिस्टर इंडिया, ओके, तो वो 5, ठीक है, जीरो भी एक नंबर है ना, ओके, तो जीरो भी एक नंबर है, इसलिए वो जीरो अगर है तो उसको भी एक नंबर ट्रीट किया जाएगा, कुछ नहीं होता है, एम्प्टी होता है ना। सो इम्पॉसिबल इवेंट हैज ओनली वन एलिमेंट 0, दैट इज फॉल्स, okay, so B is the correct option. I hope this my experiment is enriching you with knowledge, okay. Now question number 31, which of the following is an example of a random experiment? ये सारे ऑप्शंस को पढ़ो और इनमें से रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें फिक्स नहीं है क्या आउटकम आएगा, बट पॉसिबिलिटीज पता है। तो थ्रोइंग अ स्टोन इन द स्काई, पता है ये सर पे गिरने वाला है, अगर हम बाजू नहीं हो गए तो इट विल फॉल डाउन, ठीक है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है। रैंडम का मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसको डिटर्मिन नहीं किया जा सकता पर पॉसिबिलिटीज है। रिपीटेडली सॉल्विंग एन Yes, sir. इक्वेशन, हाँ, ये इक्वेशन के अंदर में अगर हम सेम वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर भी सेम ही आएगा, तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे कि है ना, यहाँ पे x की वैल्यूज मान लो 2 रख दो और y की वैल्यूज 1 रख दो, तो z को आप 100 टाइम्स सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आप कुछ चेंज नहीं करोगे तो वो चेंज नहीं होने वाला। रनिंग का सेम कंप्यूटर प्रोग्राम, तो किसी ने आंसर दिया है डी, सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड, तो हर बार आप पत्ते पीसोगे तो उसमें से फिर अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, in how many ways can a committee of 2 men and 3 women
कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 men and 6 women. तो कितने वे से हम फॉर्म कर सकते हैं कमिटी ऑफ 2 men and 3 women? तो देखो कितने मेन है, कितने वुमेन है, ओके। तो 5 मेन्स है और 6 वुमेन्स है, उनमें से कितने सिलेक्ट करना है? 2 जेंट्स सिलेक्ट करना है, लेडीज कितने रहेंगे उसमें? 3। तो हमको क्या चाहिए कमिटी में? मेन एंड वुमेन सभी चाहिए, तो हम इंटू करेंगे। तो अभी 5 में से 2 कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C 2 वेज। इसी वक्त हमको वुमेन्स का भी सिलेक्शन करना है, तो 6 में से 3, ओके। तो इसका प्रोडक्ट कर लो। क्यों हमने इंटू अप्लाई किया? क्योंकि हमको मेन और वुमेन में से दोनों भी सिलेक्ट करना है। कमिटी में मेन भी रहेंगे, वुमेन भी रहेंगे, ठीक है। सो हु विल टेल मी द आंसर? So what is the answer? 200 A is the option. correct answer. Options are 200, 120, 320 and none of these. So correct option is A, that is the 200. Got it? Okay. So those who understand, please blow your thumbs. Okay. Good. So next question number 33. The probability that cannot exist among the following. इनमें से अभी एक क्वेश्चन इस टाइप का हो चुका है। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं हो सकती? हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो कुछ नहीं होती है ना। प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी नेगेटिव, दिस कैनॉट हैपन। तो यहाँ पे देखो अमॉन्ग ए बी सी डी, ए 2/5, दिस -1/1.2, 15%। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इन सारे केसेस में क्या है कि ये जो है ये ऑड मैन आउट है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैनॉट एग्जिस्ट बोला है, ठीक है। सो रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरह का क्वेश्चन हमने देखा था, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है? हीटिंग वाटर अबव 100 डिग्री सेल्सियस क्या होने वाला है? बॉयल हो जाएगा। नॉट बोला है। टॉसिंग टू फेयर कॉइन साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ हेड्स, इसमें हमेशा चेंज होते जाएगा, है ना। टॉस करोगे तो हर बार अलग आउटकम आएगा, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नथिंग नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेट आउट ऑफ 10। अगर मैंने 10 बच्चों को, आप में से 10 लोगों को बोला कि 10 सीड्स जो है आप अपने घर पे लगाइए, और 10वें दिन अगर मैंने देखा कि पूछा आपसे कितने सीड जर्मिनेट हुए, तो हर एक के आंसर अलग अलग रहेगा। कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा 1, कोई कह सकता है कि ऑल 10 सीड जर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि यूनिक नहीं है आंसर, ओके। नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज ऑफ अ बुक, बुक में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक चेक करोगे तो वो भी अलग अलग आएगा, ओके। तो रैंडम नंबर, तो बी सी डी आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एक्सेप्ट द ए। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? Which of the following is not a example of random experiment? A is not a example of a random experiment. Did you all understand? Yes, Blow sir. your thumb. Yes, sir. Yes. Okay. So next question number 35. If A and B are two events defined on sample space omega such that P of A, okay, P of A is 0.5, P of B is equals to 0.6 and P of A intersection B is equals to 0.3, then P of A dash intersection B dash is। तो आपको वैल्यूज दिया है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। मैंने आपको बोला है कि P ऑफ A डैश A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ये रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। जैसे मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया आपको, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A पूछा, अगर आपको ये रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B है, अगर B विथ रिस्पेक्ट टू A पूछा तो उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आपको देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों फार्मूला हमेशा याद रखना क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज यूज्ड। तो P ऑफ B क्या है? 0.6 है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? 0.3 है, तो आंसर आएगा 0.3। सो ऑप्शंस आर A 0.2, B 0.1, C 0.3 and 0.4. So C is the correct option. So did you all get it? Yes?
Yes, sir. So next question. So next question, if A and B, question number 36, A and B are any two events defined on sample space omega, then A union B. Any two events बोला है, ये ध्यान में रखना। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें बोला था कि डिसजॉइंट बोला था ना। अब ये क्या है, एनी इवेंट। तो ये एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ऑप्शंस आर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये कब होता है, जब डिसजॉइंट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब ये होता है। बट अभी सिचुएशन क्या है, टू इवेंट्स, एनी टू इवेंट्स, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन देयर। गॉट इट? So B is the correct option. Okay. Yes, sir. So next question, question number 37. The events A and its complement A are always, क्या होता है, जैसे मैंने A नंबर, जैसे again I take the example throwing a die getting 1 to 6, A is equals to even number. Okay. और A complement क्या आएगा, odd number आएगा, बराबर है। तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, even 2 4 6, तो ये क्या आएगा 1 3 5। यस। तो द इवेंट्स ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश आर ऑलवेज कैसे रहेंगे, श्योर इवेंट रहेंगे, इम्पॉसिबल रहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जॉस्टिव इवेंट्स रहेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखो इस केस में एग्जॉस्टिव भी आ रहा है, बट हर टाइम ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं ना। ओके। अगर मैंने प्राइम नंबर पूछा आपको, प्राइम नंबर, ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 3 और 5 आएंगे, तो उसमें फिर वो कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही रहेंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल आर इधर, कितने वर्ड्स है। अगेन ये हमने सॉल्व किया हुआ है। एप्पल में ए जो है, पी जो है 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो n1 इज इक्वल्स टू 2 आएगा। बाकी ए और ए एल और ई जो है वो एक ही बार आ रहा है, सो n2 n3 और n4 कहीं पे भी, तो n3 इज इक्वल्स टू 1। ओके। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। n इज इक्वल्स टू 5, तो फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, जितने अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट्स है उतने मैं टाइप ले रहा हूँ। तो इसमें 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, सारे के सारे 1 फैक्टोरियल है। So 1 factorial does not create any impact. So what is the answer? Yes, will answer me. 60. Yes, 60. Okay, so 60 is the correct option, D. Okay, so 5 factorial upon 2 factorial, it is 60. So हम 60 वे से ये फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, in how many ways can 10 examination papers can be arranged so that the best and the worst paper can never come together? 10 एग्जामिनेशन पेपर्स है, किस तरह से अरेंज करेंगे कि बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर हमारे कभी साथ ना आए। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। पेपर 1 पेपर 2 सैम्पल स्पेस में क्या है। ओके। मान लो कि ये बेस्ट पेपर है और ये वर्स्ट पेपर है। ठीक है। और बाकी के पेपर्स में 1 2 अप टू 8 लिखता हूँ। ठीक है। तो ये साथ में ना आए तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट और ये दोनों पेपर को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो हमेशा साथ में आएंगे, टुगेदर की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। टुगेदर कब आएंगे, हम थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, बराबर। तो टुगेदर रहने की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब नेवर टुगेदर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से
टुगेदर की प्रोबेबिलिटी कम करना पड़ेगा, टुगेदर। अंडरस्टूड और नॉट? दोज हु अंडरस्टैंड दिस लॉजिक प्लीज ब्लो योर थम्स। हमको नेवर टुगेदर कैलकुलेट करना है, पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? उल्टा, हम उल्टे हाथ से घास खाएंगे, यानी कि खाना खाएंगे, ठीक है। नेवर टुगेदर कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टुगेदर फाइंड आउट, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, टुगेदर की। अब टुगेदर रहना चाहिए, इसलिए हमको वर्स्ट और बेस्ट पेपर को हमको साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 10 थे, पर अगर इनको एक ही मान के चले तो 2 मिलके एक ही बन जाएगा और बाकी 8, तो यहाँ पे 9 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। बराबर, ये समझ में आया? अगर वर्स्ट और बेस्ट पेपर को एक ही माना हमने तो क्या बनेगा? एक ही बनेगा। कंबाइन कर लिया, यानी कि फेविकॉल लगा दे इनको, ठीक है। तो वर्स्ट एंड बेस्ट पेपर जो है वो क्या हो जाएगा? सिंगल ट्रीट होगा। और बाकी के 8 पेपर्स, तो टोटल 9 हो गए। ओके, तो अभी 9 ऑब्जेक्ट कितने वे से हम कर सकते हैं अरेंज? देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 पेपर कैन बी अरेंज। 10 पेपर को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? कितने वे से कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। 10 पेपर को 10 फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं। कैसे आया 10? 10p10 कैलकुलेट करके देखो, 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। When the best paper and the worst paper come together regarding the two as one paper, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने दोनों को एक ही ट्रीट किया है, we have only 9 पेपर। तो जब दोनों को एक ही ट्रीट करेंगे, बाकी बचे 8 और ये एक 9, तो ये 9 पेपर्स हो जाएंगे। तो ये 9 पेपर जो है 9 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। ये पेपर 9 पेपर 9 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। बराबर, ओके। तो रिगार्डिंग द टू एंड द टू पेपर्स कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन टू वेज। अब ये जो पेपर है, पहले तो बैड पेपर आएगा, बेस्ट पेपर आएगा, या बाद में वर्स्ट पेपर आएगा, या फिर पहले वर्स्ट पेपर आएगा फिर बेस्ट पेपर आएगा। तो इनको भी तो 2 फैक्टोरियल वे से 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ मैं। बराबर है, ओके। तो 9 फैक्टोरियल वेज है और उसमें बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर भी कितने वे से आ सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर डू नॉट कम टुगेदर? तो 10 फैक्टोरियल में से 9 इंटू 10, देखो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये टुगेदर के लिए है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछो अभी। यस, नोबडी हैज डाउट? पूछिए, वरना ऐसा ना हो कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दोनों को हमने एक ही ट्रीट किया है और इसके वजह से 10 की जगह पे 9 आएगा और 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यानी कि पहले या तो बी आएगा या फिर बेस्ट पेपर आएगा, फिर वर्स्ट पेपर आएगा, या फिर पहले वर्स्ट आएगा फिर बेस्ट पेपर आएगा, तो 2 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज 10 फैक्टोरियल में से इसको माइनस करना है, तो 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे ले लो। ओके, तो इसमें से क्या आएगा? अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? यस, 9 फैक्टोरियल। अब ये आंसर कैसा है मैं बताता हूँ। 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम? 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे अभी? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लो, यहाँ पे 10 माइनस 2 आएगा, ओके, फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल इंटू, ये फैक्टोरियल नहीं है शायद, नंबर्स है, ठीक है, ये फैक्टोरियल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। ओके, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस, एवरीवन प्लीज ब्लो योर थम्स। ठीक है, ओके, ये बाद में मैं शेयर करूँगा आपको ये वीडियो, ठीक है। तो आप कल को अच्छे से दोबारा सुनने के लिए ये मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये फिर से बार बार आप पढ़िए, है ना। आज का लेक्चर होने के बाद मैं इसे शेयर करूँगा आपको, तो आप अच्छे से पढ़िए और आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इनमें से क्वेश्चन आएंगे 20, ठीक है। सो 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर अल्टरनेट? ओके, कितने वेज से कर सकते हैं ये अल्टरनेट वेज से बैठने के लिए? 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो मान लो कि बॉयज है, अल्टरनेट बैठना चाहिए, है ना।
तो हमको अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। 4 बॉयज़ है, ये बॉयज़ है, ओके, ये भी बॉयज़ है। तो अल्टरनेट बैठना चाहिए, यानी कि 2 बॉयज़ के बीच में गर्ल्स होंगी, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। ठीक है, तो अब देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। बॉयज़ को ऑड नंबर पे बैठना पड़ेगा, बराबर। 7 सीटें हैं, 7 सीट्स है, उनमें से बॉयज़ को ऑड नंबर पे बैठना पड़ेगा और गर्ल्स को जो है वो इवन नंबर्स पे बैठना पड़ेगा, 2, 4 और 6, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। तो बॉयज़ कैन सिट इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज, यानी कि इसका आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल और बॉयज़ 4 फैक्टोरियल। इनका प्रोडक्ट करके देखो और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बैठेंगे तो ही अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। सो डू दिस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, okay, so how many ways, how many arrangements are there, 144, 288, 120। तो इसका अगर आप प्रोडक्ट करोगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 144 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके। और देखना है क्लास टेस्ट होने के बाद जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना, वो क्वेश्चन आपका असाइनमेंट रहेगा, उसके करेक्ट ऑप्शन भी आपको लिखना है विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, तो असाइनमेंट नंबर 2 क्या रहेगा कि जो भी क्लास टेस्ट के क्वेश्चन है उसको फुल एक्सप्लेन करना है 20 क्वेश्चन को, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, दोनों टेल्स आएंगे जब 2 कॉइन्स अगर टॉस करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये देखो एच टी सैम्पल स्पेस क्या है, टी एच और टी टी, बराबर है। 2 कॉइन अगर टॉस करते हो तो यही आउटकम्स होंगे आपको। तो इसमें से बोथ टेल्स आएगी, इसकी चांसेस क्या है 1/4। सो वेर इज 1/4, इज द 1/4, 1/6, 1/2, 1/4 और 1/2। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन देयर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो डाई के अंदर में इवन नंबर कौन से है, 1, 2, 6 में इवन नंबर कौन से है, 2, 4 और 6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितने रहेंगे, 3/6, यानी कि 1/2। सो अगेन ओके, so C is the correct option. Are you all understanding properly? Yes, sir. Blow your thumbs please. Okay, और अच्छे से समझना है, मैं इसका बाद में लिंक भी आपको शेयर करूंगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ये असाइनमेंट भी रहेगा आपको, ये 20 क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट नंबर 2 में आने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वैसे टाइम हो गया है, वी विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, ट्राई टू कवर द मैक्सिमम। A box of 600 bulbs containing 12 defective out at random from this box, then the probability that it is non-defective is, ठीक है। टोटल कितने बल्ब है 600, तो इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 12, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 588, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक अगर वहाँ से सिलेक्ट किया एक प्रोबेबिलिटी, तो नॉन डिफेक्टिव रहने के चांसेस कितने हैं, इसी में से आएगा ना 588। नॉन डिफेक्टिव कितना है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो 588 नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो 588 अपॉन टोटल बल्ब कितने ही इतने, तो इसका फाइंड आउट करो। तो जाहिर है कि इसको 4 से कॉमनली आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये 150 हो जाएगा, और 588 को डिवाइड कर दो 4 से, तो कॉमन मल्टीप्लायर है, तो ये आएगा 147, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कम है ना, तो 12 इसको डिवाइड करो 4 से, बराबर है, तो 3 कम कर दो 150 में से 147। तो ऑप्शंस अमॉन्ग द ए बी सी डी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। So did you get the answer, did you understand it, yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, blow your thumbs if you understand it. Okay, so next question जो है वो है क्वेश्चन नंबर 44। okay, so what is the probability of getting 53 Mondays in a leap year? लीप ईयर के अंदर, लीप ईयर यानी कि हाउ मेनी डेज है, लीप ईयर में 366 डेज, इसका मतलब होता है 52 वीक्स। आप कैलकुलेट करके देखना, 52 वीक्स एंड 2 डेज आर एक्स्ट्रा। तो अभी 52 वीक्स है,
तो 52 संडेज मंडेज भी रहेंगे, 52 मंडेज तो रहने ही वाले हैं, बराबर है। अब ये डिपेंड करता है कि 53 रहेगा मंडेज या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि रिमेनिंग डेज कौन से है ना। तो ये इनका कॉम्बिनेशन 2 डेज का जो है कॉम्बिनेशन हमको निकालना है। ओके, तो 2 डेज क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे और मंडे। इसमें से अगर मंडे वाले अगर ऑप्शन निकाल दो, ये वाला और ये वाला, तो दो ही केसेस में रिमेनिंग 2 डेज में ऐसे दो ही चांसेस आते हैं जिसमें मंडे इंक्लूड है, तभी वो 53 मंडे। तो टोटल कितने ऑप्शन है हमारे पास, 7 कॉम्बिनेशन है। दो देखो 52 वीक्स है तो 52 मंडेज भी रहेंगे। अब ये पूरा का पूरा खेल जो है ये दो रिमेनिंग डेज के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। इनमें से अगर मंडे इंक्लूड हुआ तो 53 मंडेज आएंगे। तो टोटल केसेस कितने हैं, n इज इक्वल टू 7। इसमें से मंडेज कितने इसमें है, मंडेज इंक्लूड है 2 केसेस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 आएगी। ओके, तो 2/7 आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन ए 1/7, बी 53/366 और सी 2/7 और डी 7/366। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। गॉट इट। वही अब अभी सिमिलर ऑप्शंस है नॉन लीप ईयर। तो इसमें भी नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है, लीप ईयर है ना, एक डे एक्स्ट्रा होता है, तो नॉन लीप यानी कि 365 डेज। तो इसमें क्या आएगा, 52 वीक्स आएंगे और 1 डे एक्स्ट्रा आएगा। ओके, अब 52 वीक से सेम वही एक्सप्लेनेशन, 52 मंडेज भी रहेंगे। ओके, बट अभी बचा हुआ जो दिन रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। तो इनमें से एक ही ऑप्शन है जो मंडे इंक्लूड है। जब मंडे आएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कितने हैं, 7 है, 7 में से एक ही केसेस में मंडे है। जब ये मंडे आएगा तभी 53 मंडे बनेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड प्रॉपरली? सो द करेक्ट ऑप्शन कौन बताएगा मुझे? यस, समवन प्लीज टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। A is the correct option among this. Okay, so non leap year की प्रोबेबिलिटी है 1/7, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी है 2/7. Okay, so next, according to axiomatic approach of probability of sample spaces, ये हमने देखा हुआ है। चलो फटाफट आंसर बताइए। A 0, B infinity, C 0.5, D 1, कौन सा ऑप्शन रहेगा? D is the correct option. सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। सैंपल स्पेस इज अ यूनिवर्सल सेट, कोई भी इवेंट इसके बाहर नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द सैंपल स्पेस व्हिच कंटेन्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल एलिमेंट्स, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। इसे नाम क्या है? ऑप्शन है फाइनाइट सैंपल स्पेस, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, कंटिन्यूस सैंपल स्पेस और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है फाइनाइट सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और एक होता है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। मैं इसका बताता हूँ। डिस्क्रीट के दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है काउंटेबली इनफाइनाइट। यानी काउंट तो कर सकते हैं, पास 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 पास, यानी कि नंबर ऑफ यानी कि क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर पासिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पी, फिर फेल प्लस प्लस, फिर 2 बार फेल फिर पास, ये कंटिन्यू रहेगा। तो काउंटेबली इनफाइनाइट यानी कि हम काउंट तो कर सकते हैं बट वो इनफाइनाइट सीरीज है। और दूसरा जो है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, इसी को हम कंटिन्यूस भी बोलते हैं, कंटिन्यू। so did you all understand this? Okay, so what is the correct option? Continuous sample space, यानी कि C is the correct option। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान में रख के पढ़िए। हम अभी 50 क्वेश्चन तक करेंगे क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन कई है, 60 क्वेश्चन है और बाकी के और भी क्वेश्चन है, बट अभी हम 50 तक ही ये करेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। नेक्स्ट, कार्ड्स मार्क्ड विथ 2 to 10 are placed in a box and mixed thoroughly.
कार्ड्स को नंबर दिया है 2 2 2 3 अप टू 101, ठीक है, ये कार्ड्स के नंबर है। ओके, आर प्लेस इन बॉक्स एंड मिक्स रफली थ्रोली, उनको अच्छे से मिक्स किया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स, देयर द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अ कार्ड इज परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 टू 101, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको 0 टू 100 दिया, अगर 1 टू 100 दिया तो भी इंक्लूसिव दोनों नंबर क्या आते हैं, 100 नंबर्स आएंगे। अब आपको देखना है 2 से लेकर 101 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर्स है। देखो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये इंक्लूड, ये स्टार्ट 2 से हो रहा है। फिर परफेक्ट स्क्वायर कौन से है, 4 है, नहीं सॉरी 4, 2 9, का, 16, हाँ 25, 4 9 16 25, यस। उसके 25, बाद 36 36, 49 36, 64, उसके बाद क्या आएगा, यस 81 81, और 81. 100, 80, बराबर। 1 नहीं 80, आएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है इसके अंदर में, बराबर। तो टोटल कितने नंबर्स है, 2 टू 31 कितने नंबर्स होते हैं, 100 होते हैं, बराबर है। तो टोटल नंबर्स ये आएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर कितने आएंगे, 9, सो इट इज 9/100। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो इट इज ए। यू हैव टू थिंक अ लिटिल बिट ऑन दिस, ओके। तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी है, अच्छे से कीजिए ट्रिकी क्वेश्चंस। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। अभी तो ये हो चुका है, लीप ईयर के अंदर में 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, so a game consists of tossing a 1 rupee coin and nothing it tossing a 1 rupee coin 3 times toss करते हैं, nothing it's noting its outcome each time। उस क्या आता है, यानी हेड आता है या टेल आता है, वो मेजर किया जाता है each time। आर्यन wins if all tosses give the same result। अगर एच एच आएगा तो वो विन करेगा। 3 हेड्स, दैट इज 3 टाइम्स, यानी कि एच 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 आएगा तो क्या करेगा वो, 3 हेड्स एंड 3 टेल्स, सेम रिजल्ट, यानी कि सेम आया, यानी कि एच एच टी या टी 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 आएगा तो वो विन करेगा, ऐसा बोलना है, ठीक है। एंड लूजेस अदरवाइज, इसके अलावा कोई भी आएगा, यानी कि ऑल हेड्स या फिर ऑल टेल आया तो वो विन करेगा, उसके अलावा कुछ आया तो वो लूज करेगा। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द आयरन विल लूज द गेम, कौन बताएगा मुझे। अभी आपको पता होना चाहिए कि कॉइन टॉसिंग 2⁻³ यानी कि 8 आउटकम्स आएंगे, है ना। उसमें से सेम रिजल्ट कब आएंगे, आइदर एच 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 या टी टी टी, ठीक है। तो ये 2 केसेस रहेंगे, ठीक है। तो उसकी जीतने की चांसेस कितने हैं, 2/8 है, बराबर है। यस, एग्री और नॉट, डिड यू एग्री और नॉट, yes, यस, ओके। तो 2/8 जीतने के चांसेस हो गए, तो हारने के चांसेस कितने हैं, तो 6, जो भी इनको छोड़ के जो भी कॉम्बिनेशन रहेंगे वो 6 होंगे, बराबर है। तो यानी कि एच एच टी, टी एच एच, टी एच टी, एच टी टी, जो भी ऑप्शन है इनको छोड़ के तो वो 6 है नंबर्स, तो 6/8 Yes, sir. इसके, 3/4. यस 3/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ए बी सी डी में से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट, yes, right. ओके। Yes, तो sir. अभी मैं आपको 50 ही क्वेश्चन देता हूँ, आगे भी क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो 51 52, यहाँ पे तो 60 है, और भी मैं 10-12 क्वेश्चंस निकाल के रखा हूँ, बट अभी टाइम कम होने की वजह से, तो आप 50 क्वेश्चंस तक अच्छे से आप करिए, आगे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। और इनमें से हम क्वेश्चंस को पूछेंगे, ठीक है। तो होप यू हैव नोटेड द हिंट्स, और इसका जो लिंक रहेगा मैं आपको शेयर करूँगा, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से और सीरियसली लीजिए क्लास टेस्ट को। क्लास टेस्ट होने के बाद जो भी क्वेश्चंस रहेंगे 20 क्वेश्चंस, वो 20 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में रहेंगे, और वो असाइनमेंट के ऊपर जो है मार्क्स रहेंगे, जो भी असाइनमेंट में दूंगा उस सभी के ऊपर मार्क्स रहेंगे, ठीक है। इसलिए असाइनमेंट सबमिट करने के पहले अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। इज दैट क्लियर, सो थैंक यू वेरी मच, and I will collect your attendance from from the from the teams, okay। So wish you all the best for tomorrow's class test, okay। ये 50 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे।